everybody. So, let us start with the session on PSIR. So, like we all know how important your optional is while you are preparing for UPSC. So, if we talk about the two major pillars of this entire exam, the one being GS and the other being optional. So optional plays a very important role, and how significant is it? I really need not focus upon the significance, because mains, your score for mains depends entirely on how good and comfortable you are with your optional. And UPSC provides you a list of many optionals, and here we are talking with your doubts and how PSIR could be effective, or how easy is it, or how difficult it is. So all the major queries, all the very common queries that students have regarding this optional, I will try to cover it all, along with the focused areas of the syllabus, that what all is required when the candidate is writing this exam, right? So few questions like how to begin the preparation, ma'am, how vast is the syllabus, is the syllabus dynamic or static, what kind of questions can we expect, do we expect a new question coming every year, or there is a certain pattern that we can draw out of all the previous year questions if we see at it. What about the sources? Sources play a very important role in UPSC. You will find, not just for the optional but for GS, you will see for a single subject, for a single thing, you will have numerous resources available in the market. But while you are preparing for UPSC, you do not have that time to, I would not say invest, rather waste on reading all of those resources. कोचिंग में आप इसीलिए आते हो दैट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम हेयर एंड देयर, और आपको सब एक बना बनाया मटेरियल already ready for UPSC, and your job is to understand and mug up and logically understand that particular thing, whether it is GS or political science, right? So guys, you can raise your hands, you can ask questions and doubts if you have any, while we will traverse through the entire presentation and the session. So let me start now. When we say optional political science and international relations, the second part of the subject, that is political science, international relations, that you know, और उसको सुनकर समझ आता है द थिंग इज गोइंग टू बी क्वाइट डायनामिक, जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत डायनामिक रहने वाले हैं, और आईआर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है. बट in order to understand and answer and address those dynamic questions in your mains, you need to have certain static knowledge. अगर इंडो चाइना का प्रेजेंट रिलेशनशिप पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, unless and until you know the strategic partnership that has happened before and how the ties were established, वो जब तक आपको उसका रूट नहीं पता होगा, you cannot really answer the question in a comprehensive manner, right? So, and if you look at the first part, political science, then क्या मैम ये politics के बारे में है, क्या ये political theories के बारे में है? So सब्जेक्ट को समझते हैं थोड़ा, कि ये सब्जेक्ट कितना एडवांटेजियस है अगर हम इसको चूज करना चाहें, एंड हाउ इट कैन हेल्प यू, राइट? सो लेट अस ट्राई एंड डू दैट. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस. मैं सिलेबस पे अभी थोड़ी देर में आती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस सिलेबस के बारे में. बिफोर दैट लेट मी टेक यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैम sociology ले, PSIR ले, philosophy ले. Now there is a new word in the market. Philosophy का syllabus बहुत छोटा होता है, तो people are just going for it. Guys, understand, जो आपका optional है, आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ you have to choose PSIR. Optional वो choose कीजिए जिसको पढ़ने में आपको मजा आता हो. Understand? By the next year when you will be writing your mains, it has just started, Preeti. Yes, Rishabh, you may ask your doubt. Ma'am, Yeah. I wanted to know कि जैसे ये शायद का सिलेबस नोन है, हम लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं, Yeah. तो एट द सेम टाइम हिस्ट्री का भी सिलेबस जैसे मॉडरेट सिमिलर है. Yeah.
माई डाउट इज कि जैसे मैं अपना बोलूँ तो मेरे तो दो ऑप्शन है कि आई वांटेड आइदर हिस्ट्री और पॉल साइंस, तो Yeah, ये कौन सा चूज मेरे तो करना बेटर होता मैम, क्योंकि right. दोनों ऑप्शन रखा होती आइदर फिजिक्स और आइदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, आई कैन चूज एनी ऑफ वन, तो कौन Yeah, बेटर होता मैम I चूज? got your doubt, Rishabh. Let me just tell you something about PSIR first. Are you a PSIR? Do you have you done your graduation from political science? Are you a humanities student or a science student? मैम मेरा स्कूल लाइफ में टिल क्लास 10 आई हैड माय साइंस, 10 11 12 और ग्रेजुएशन मेरा ये आर्ट्स में हुआ है मैम। Okay, okay, Rishabh. I think and that also in graduation my subject was history mainly. Okay, So, but I have my interest in both the subject actually. I got your doubt. I will get back to you, Rishabh, in a while. Let me just explain something first with related to the optional, not just PSI or related to optional. Then I will get back to you. I'm sure I will be able to answer your doubt. Okay. Okay, ma'am. So yeah. So guys, whenever you are choosing an optional, it is not just PSIR, but any optional that you are trying to choose upon, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ कितना कंफर्टेबल हूँ, इसको पढ़ने में मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ, इसकी थ्योरीज को या न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड जो आता है उसको जानने में के लिए मैं कितना एक्साइटेड हूँ, एंड कैन आई कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई रीड इन माय बुक्स एंड व्हाट आई रीड इन माय न्यूज़पेपर, कैन आई इंटरलिंक इट, राइट? So that is most important. And if I say optional is like your wife, like उसको ऐसे treat करना है, आपको पसंद है चाहे नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए कितने दिन के लिए, एटलीस्ट फॉर एन ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. सो ऑप्शनल देखिए एक बहुत मेजर पिलर है फॉर योर एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन. आप जब भी मेंस के लिए प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हो और हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल को पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सिलेबस इतना वास्ट है. सी नॉलेज इज इनफाइनाइट. कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता है. इवन आई कैन नॉट क्लेम आई नो एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस. मैं उसके बारे में सब जानती हूँ और आप मुझे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं सब कुछ आंसर कर दूंगी. एंड देयर इज नथिंग अंडर द सन दैट आई डू नॉट अबाउट पीएसआईआर. नो, ऐसा कभी भी नहीं होता है. नाइदर वी आर हियर टू डू अ पीएचडी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो. हमको पीएचडी नहीं करना है. आर एम इज टू हिट व्हाट? यूपीएससी. जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसको आप कितने कंफर्टेबली पढ़कर अपने आंसर में लिख पा रहे हो. नाउ एज यू सी यूपीएससी, यू हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट हियर. वन इज द ऑब्जेक्टिव थिंग, दैट इज द प्रिलिमिनरी. द अदर इज मेंस. आपका पीएसआईआर का नॉलेज या फॉर दैट मैटर ऑप्शनल का नॉलेज चेक होता है मेंस में. So your subjective and your answer writing skills have to be really enhanced. You have to hone your skills. और आंसर राइटिंग कभी भी एक ओवरनाइट नहीं आता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गुड डील ऑफ टाइम. आपको 10 से 12 महीने लगते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए. एंड ऑल्सो नाउ दैट वी हैव गुड नंबर हियर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर, I'll just get back to your doubts. So, who are here with us now? I'm already assuming that many of you are from humanities background and many of you might not be from humanities background. आप साइंस से पढ़ के आ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, for people who are from the science background, you are at no disadvantage. कभी भी ये नहीं समझना है कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, बीएससी किया है या कोई भी साइंटिफिक डिग्री या साइंटिफिक स्ट्रीम से हैं, तो मुझे शायद पॉलिटिक्स उतना समझ नहीं आएगा. The best thing about PSIR is that the subject is very logical. It is very practical and it is very logical. If you understand the logics, then you can easily understand this subject. And if I go by my pedagogy, how do I address this subject? तो आप मेरी क्लासेस में ये हमेशा देखोगे, I do not stress at all giving you n number of books to read. मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ ये बुक पढ़ लीजिए वो बुक पढ़ लीजिए. बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है. जो नोट्स आपको क्लास में मिलेंगे उनको 10 बार पढ़ने से आपका आंसर अच्छा बनता है. So you have to be very careful about it. Okay, do not just go mad over reading different books. मैम गौबा भी पढ़ लिया
और मैम सुब्रतो मुखर्जी भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया मैम, अब आंसर राइटिंग को कैसे क्लियर करें? आंसर राइट एक चीज को 10 बार पढ़ना है रादर देन रीडिंग 10 बुक्स एट अ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, तो इसको समझना है। दूसरा, आई वुड लाइक टू से, जैसे आप साइंस पढ़ते हो ना, साइंस में क्या होते हैं लॉजिक्स, यू डू केमिस्ट्री, यू डू फिजिक्स, यू डू मैथमेटिक्स। अब इस सब्जेक्ट का नाम ही है पॉलिटिकल साइंस। सो देर आर सर्टेन स्कॉलर्स फ्रॉम दिस फील्ड हु से व्हाट, who say that when I look at the question paper of political science, I am more troubled with the title of the question paper than the questions. तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के साथ साइंस लगा के तो आपने पॉलिटिक्स की थोड़ी इंसल्ट सी कर दी है। व्हाई साइंस इज बीइंग एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, बट सच इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट कि हर चीज बहुत लॉजिकल है। प्लेटो, यू डू एन नंबर ऑफ थिंकर्स हियर, देयर इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जहाँ पे हम वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ते हैं, देयर आर इंडियन थिंकर्स। तो थिंकर्स जो होते हैं, जो थॉट होता है किसी भी थिंकर का, लेट्स से प्लेटो, लेट्स से सोक्रेटिस, लेट्स से मैकियावेली, हना आरेन, जितने भी आपके स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो भी थॉट दिया वो क्यों दिया, वो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा। आप अगर उनके थॉट्स को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा, प्रोबेबली वो आप फिर यूपीएससी के लिए नहीं बने हो, यूपीएससी को वो स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। यू विल हैव टू थिंक अबाउट एवरी थॉट फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एंड जब भी हम थॉट की बात करते हैं, we essentially think about a thought from two domains, one is space and the other is time। ये सब हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेटो किस टाइम को बिलोंग करते थे, किस कंट्री को बिलोंग करते थे, कैसी सोसाइटी में रह रहे थे, विच मेड हिम और विच कंपेल्ड हिम टू गिव एन एंटायर स्कूल ऑफ फिलोसफी। वैसे ही जब हम पढ़ेंगे एंशियंट से फिर हम मॉडर्न टाइम्स में आए, मॉडर्न टाइम्स में व्हाट मेड मैकियावेली टू राइट द प्रिंस, हिज फेमस बुक द प्रिंस, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अपने ऑप्शनल में। तो हर चीज को यहाँ पे समझने का एक लॉजिक है विच इज रिक्वायर्ड। आंसर राइटिंग के लिए भी एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, इनफाइनाइट नॉलेज नहीं होना चाहिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग अंडर द सन इनटू दीज वर्ड्स, राइट, फॉर 20 मार्क क्वेश्चन आप हर चीज नहीं लिख सकते, पर जो लिख रहे हो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट हिट्स एट द नील ऑफ द हेड ऑफ द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आपने अच्छे से एड्रेस किया है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर, जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट आप जब इसके सिलेबस को देखेंगे, सी this is part 1 political theory, the second part of the question is Indian government and politics। now if you traverse through the topics, Indian nationalism जो आप सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट, बिपिन चंद्रा में इसका इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सिविल डिसोबीडियंस है, नॉन कोऑपरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, पॉलिटी में भी पढ़कर आए हो और हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन उस चीज का पीएसआईआर में जो बेस फॉर्म होता है वो आपको जीएस में भी हेल्प करता है, और पॉलिटिकल साइंस का तो वो पार्ट है ही। पेजेंट्स एंड द वर्कर्स मूवमेंट, आई एम नॉट, ऐसा लग ही नहीं रहा होगा आपको कि ये पॉलिटिकल साइंस जैसा कुछ है या पॉलिटिक्स है, ये काफी हिस्टोरिकल थिंग्स इसके अंदर है, हिस्ट्री से रिलेटेड। देन इफ यू गो फॉर पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिपिन चंद्रा में बहुत डिटेल में बताया है, फ्रॉम द लिबरल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, रेडिकल ह्यूमैनिस्ट यानी कि एम एन रॉय की बात हो रही है, दलित पर्सपेक्टिव, बी आर अम्बेडकर का क्या कहना था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड पॉइंट जो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हैं, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फ्रॉम द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, different social and political perspective। Let us come to the third topic of the paper that says salient features of the Indian Constitution। Do I need to stress upon it? You guys are very much Ma'am, familiar। voice is low. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Salient features of the Indian Constitution। So I need not stress upon it that how लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते ही ये सब है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन।
So, no, Ankit, Bipin Chandra, not NCRT, but there is a separate book to it. Okay, basic structure doctrine, you all are aware of it, right? आप सब इसको अच्छी तरह जानते हो. तो ये आपको पढ़कर लगेगा कि अगर हम इसको PSIR में भी पढ़ रहे हैं और GS के लिए तो पढ़ते ही हैं. So there is a good overlap. Now, when you move to the topic number 4, that is the principal organs of the union government. So Ma'am, your executive. voice is lacking. Ma'am, Is back it to back, your voice is lacking. okay? Wait, let me just. वाली गाने आज तक लगाई नहीं हमने. Is it fine now? Yes, ma'am. Okay. So topic number 4 talks about legislature, executive, Supreme Court. Part B is about the state government, High Court. तो ये सब आपको दिख रहा होगा that how much there is an overlapping between these two. Grassroots democracy, Panchayati Raj municipal government, significance of 73rd and 74th amendment, right? Grassroots movements, social movements. So उसके बाद आप जाइए टॉपिक नंबर 6 पे, इलेक्शन कमीशन, फिनेंस कमीशन, कैग, यूपीएससी, एनसीएससी, एनसीएसटी, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, एनएचआरसी फॉर माइनॉरिटीज. सो आप सब लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि ये सब तो हम पॉलिटी में पढ़ ही रहे हैं, राइट? बस क्या होगा, यहाँ पर आप इन चीजों को थोड़ा और डेप्थ में पढ़िएगा एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन विल बी अ बिट डिफरेंट. आप जीएस में इन क्वेश्चंस को आंसर जिस तरह करते हैं या पढ़ते हैं, यहाँ पर जब आप इनको पढ़ेंगे आपसे पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटिक्स प्रोबेबली, राइट? या प्रेजेंट एरिना में आप इसको कैसे देखते हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प मिलती है. टॉपिक नंबर 7 इज फेडरलिज्म. यस, people who want to ask, please ask your doubts. Okay, federalism is again changing nature of center state relations. अब जब सेंटर स्टेट रिलेशंस के बेसिक्स को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रेजेंट टाइम्स में न्यूज़पेपर विच इज द बाइबल फॉर एनी यूपीएससी एस्पिरेंट, वो आपको प्रेजेंट सिनेरियो में समझना है. हाउ इज द इक्वेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, then the planning and the economic development, again a topic that has been dealt at length in history as well as in Bipin Chandra. Nehruvian and Gandhian perspective, role of planning, green revolution, land reform, globalization, liberalization, right? Topic number 9 says caste, religion, and ethnicity in Indian politics. So third is 10th is party system. तो कोलिशन पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप, ये आप जीएस में नहीं पढ़ते हो. ये टॉपिक्स को आप बोल सकते हो कि यस मैम, चैप्टर 10 इज समथिंग, टॉपिक नंबर 10 इज समथिंग दैट रिलेट्स टू PSIR. And my voice should be clear. I have checked it. Is it not clear now? Is it still discontinuous when I speak? So most of the students are saying it is fine. There is some problem probably with 3 or 4 students. Let me know if there is any problem. 11th is social movements. Social movements के बिना तो GS incomplete है. Environmentalist movement, human right movement, women movement. समझ आ रहा है guys? तो इन टॉपिक्स को आपको देख के समझ आया होगा दैट पेपर 1 का जो सेकंड पार्ट है, पेपर 1 पार्ट 2 दैट स्टार्ट्स विद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हैज सो मच ओवरलैपिंग विद योर जीएस सिलेबस, राइट? कितना कुछ ओवरलैप करता है. So that is what I wanted to discuss here, that political polity and international relations. देखिए, when you look at the GS paper 2 polity and governance, और उसमें आप IR को देखते हो,
IR जो आप प्रीलिम्स के लिए तो हटा दो, चलो प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ते हो, बट यू कैन नॉट डू अवे विद इट मेंस, राइट? मेंस में वो जीएस में आएगा ही। तो उस IR को जो आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, उसको आप पॉलिटिकल साइंस में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ PSIR पढ़ने से आपको जीएस में हेल्प मिलता है, बल्कि जो बेस आप जीएस से लेकर आ रहे हो, उसको जब आप PSIR में पढ़ते हो, उसको आप काफी एक्सपैंड करते हो। इट ब्रॉडन्स योर होराइजन्स and you are able to look at any equation from different perspective, right? So ethics, for example, moral thinkers and philosophical part, तो हम यहाँ पे Socrates पढ़ते हैं, प्लेटो पढ़ते हैं, the great philosophers, मैकियावेली पढ़ते हैं, इंडियन थिंकर्स में गांधी पढ़ते हैं, और एथिक्स में गांधी जी की तो इतना सारे चीजों को आप रिलेट करते हो, उनकी स्टेटमेंट्स को देते हो। तो ये ऑप्शनल जो है ना, आपको एथिक्स में भी हेल्प करता है, जीएस में भी हेल्प करता है, ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। देखिए कैसे, ये 2017 में क्वेश्चन आया था, हैज द नॉन अलाइंड मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड, राइट? अब इस ऐसे टॉपिक को देखिए, इफ यू लुक एट इट, यू कैन फाइंड टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हियर। वन इज नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात हो रही है, एंड द सेकेंड इज मल्टीपोलैरिटी। दोनों ही चीजें पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कवर्ड हैं। इनफैक्ट नैम इज गिवन एट 3 प्लेसेस इन द एंटायर सिलेबस, 3 जगह नैम की बात की गई है। अब जब पूरे सिलेबस को आप पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ने के बाद द ब्यूटी एंड स्मार्टनेस लाइज इन इंटीग्रेटिंग नैम एज अ होल। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको अपने आप समझना है। यस अंकित, इट इज देयर। पायल, आई विल कम बैक टू आंसर राइटिंग इन अ व्हाइल, ओके? सो इस तरह आपको ऐसे में, और ऐसे में आप हर साल का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, एवरी ईयर दैट यू विल फाइंड 2 to 3 topics. One topic will definitely be very much rooted to PSIR, लेकिन उसमें भी हम स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं while writing essay, कि बिल्कुल वहां दिखा नहीं देना है कि तुम PSIR ऑप्शनल है तो बहुत एकदम डेप्थ में सब स्कॉलर्स को छांट आए हो, राइट? लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है उस पे, तो इट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज ओवर इट, राइट? सो दैट इज देयर। नाउ impact of the new economic measures on the fiscal ties between union and state, a very important topic which has been talked about of lately और हमेशा ही न्यूज में रहता है, that is fiscal federalism, fiscal ties, how the fund related distribution between the center and state is are they comfortable or not। तो वो आप डिटेल में पढ़ते ही हैं, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप PSIR में पढ़ते हैं। अभी हमने पार्ट बी में देखा था, राइट? नाउ जैसे हम, if I talk about UPSC, this exam is not a knowledge, merely a knowledge exam. It is more of a personality exam. देखिए, जब आप एक ऑफिसर बनते हैं, आप एक IAS ऑफिसर बन रहे हैं, क्या करना है आपको? आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होंगे, यू विल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको एक एडमिनिस्टर करना है एक पर्टिकुलर एरिया को। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? अगर वही क्वालिटी को आप अपनी प्रेपरेशन में शो कर पाते हो, then this exam is definitely going to be a smooth road for you. You have a syllabus which is very vast, but you have to keep your resources very minimum. Sources बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, और जितनी नॉलेज आपने गेन की है अपने 10 मंथ्स की प्रेपरेशन में या 1 मंथ की प्रेपरेशन में, उसी नॉलेज को आप कितने एक्सटेंसिव तरीके से अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, वही आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी को दिखलाएगा आपके मेंस राइटिंग में, राइट? सो इंटरव्यू में भी, फॉर एग्जांपल इन द इंटरव्यू राउंड आल्सो, इफ यू हैव अ गुड होल्ड ओवर द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वेयर यू आर पुट इनटू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो इफ यू नो द एंटायर रोल, क्या रोल है कलेक्टर का, डीसी का, सबका, तो वो एक अच्छा एक ओवरव्यू आता है, एक अच्छा इंप्रेशन आता है। एंड गाइज, जो मटेरियल है PSIR का, ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैम इसका मटेरियल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। while you have अदर सब्जेक्ट्स, जैसे एंथ्रोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो कुछ टाइम पहले यू माइट नॉट एक्सपेक्ट कि सारा सिलेबस, सारे रिसोर्सेज
आपको इजीली मिल जाते थे, राइट? लेकिन पीएसआईआर का ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज पीएसआई का सिलेबस कुछ रिसोर्सेज कुछ ज्यादा ही हैं। द मटेरियल इज रेडिली अवेलेबल, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर रीडिंग मल्टीपल बुक्स फॉर द सेम टॉपिक्स। सेव दैट टाइम। उस बेस्ट मटेरियल को आप तक पहुंचाना हमारा काम है। आपका काम है जो आप तक पहुंचा है आप उसको कितने अच्छे से रिटेन कर पा रहे हैं, राइट? So that's there. Then, of course, I have already talked about it. Whether you are a humanities student or not, it is not going to be very tough. The subject is very logical, right? Newspaper is a must, a Bible thing for you all. और जब हमको इंडिया और वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के बारे में, जब हम आईआर पेपर 2 की तैयारी करते हैं और जब हमको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होता है ना, तब न्यूज़पेपर पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। फिर तुम्हें फील होता है दैट आई एम एन एक्सपर्ट, ओके, आई गॉट द एंटायर मीनिंग ऑफ दिस एडिटोरियल, वो क्या कहना चाहते हैं, राइट? सो दैट इज देयर। देखिए गाइस, जैसे फिलोसफी को मैं क्या बोलूं, फिलोसफी में आप पढ़ते हो ना, फिलोसफी कैन बी कॉल्ड एज अ सोल क्राफ्ट। ठीक है, आप सोल के बारे में पढ़ते हो। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस इज स्टेट क्राफ्ट। स्टेट को कैसे चलाना है, राइट? देश को कैसे चलाना है उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, what shall be done to remain in power, how to gain the confidence of people, वो सब एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर करता है। ठीक है, ये आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हो that politics is an art and political science is a craft that tells you कि कैसे हमको अच्छे से पॉलिटिक्स को समझना है, राइट? अब मैं एग्जांपल लेती हूँ एक यहाँ पे करंट इंडियन पॉलिटिक्स का। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी, राइट? What do you think? I would like you to interact and give me few answers. Why do you think Modi has come to power and he has remained to continue in power in 2019 and in the present scenario? You also think कि 2014 में भी शायद मोदी जी ही आने वाले हैं? What do you think? Tell me, what made him win the elections in 2014? He is a political leader. What do you think? Okay, I've got some answers here. Decision making. Okay. Anybody else? मैम, Yeah. High promises. Very good, मोदी जी Ankit. Very good. Yes, Modi ji. मोदी जी लोगों से संपर्क कर पाते हैं। लोगों से संपर्क कर पाते हैं। His communication skills. Very good, Nayan. Yes, Preeti. देखिए, सबका आंसर what is the root communication? ठीक है, मोदी जी ने आके सब ये नहीं कर दिया इंडिया पूरा स्वच्छ हो चुका है, पर स्वच्छ होने की बातें की हैं, राइट? सो जो राजा होता है ना, जो किंग होता है, वो करता कुछ नहीं है, वो बातें करता है। वो ओरेटर अच्छा होता है, राइट? और जिसके पास ओरेटरी स्किल्स अच्छे हैं ना, वन हु नोज रेटरिक, रिटोरिक समझते हो ना, रिटोरिक, वो जब आपके पास है तो जनता के साथ आप बनाते हो एक इमोशनल कनेक्ट। उधर दूसरी साइड ऑपोजिशन को देखिए, ऑपोजिशन के पास कुछ था कम्युनिकेट करने के लिए सिवाय इसके कि मोदी को हटा दो, मोदी को हटा दो, मोदी को हटा दो, दैट्स इट। उनके पास अपना कुछ नहीं था दैट कुड कनेक्ट पीपल, दैट कुड फॉर्म एन इंटीग्रेशन विद द मासेस। हमेशा ध्यान रखना, राजा जो है वो बस लोगों से बातचीत करता है, अच्छी बातें करता है, लोगों का दिल जीतता है, एंड वन हु डज दैट विल ऑलवेज कम टू पावर। इंदिरा गांधी। टॉक ऑफ एनी वर्ल्ड लीडर, आप किसी के भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, जहां पर भी आप देखोगे तो किंग ने हमेशा यही किया है, वेदर इट वाज एंशिएंट टाइम्स, वेदर इट वाज मेडाइवल टाइम्स, और वी टॉक ऑफ द पोस्ट मॉडर्न और द मॉडर्न एरा, दैट इज देयर। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप क्या देखते हो, गाइस, जो नॉलेज है ना पॉलिटिकल साइंस में, द नॉलेज इज वेरी सब्जेक्टिव। जैसे साइंस में आप पढ़ते हो क्या, 2+2=4, यही पढ़ते हैं हम, और साइंस में 2+2 हमेशा 4 ही रहने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा।
ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं होता है. द नॉलेज इज सब्जेक्टिव. बाय सब्जेक्टिव आई मीन different people reading the same text will interpret in different manner, and they will explain it in a very different manner. So 2 plus 2 in humanities will sometimes be 5, it will sometimes be 6, it can sometimes be 7, depends on how you look at it, right? आप उसको कैसे देख रहे हो. तो नॉलेज यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिव होती है, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये ठीक है या वो गलत है. द पॉइंट इज, जब आप आंसर लिख रहे हो, वो क्वेश्चन की जो रूट है उसको एड्रेस करना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड आउट ऑफ यू, आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट? तो देखिए, ये कुछ और ओवरलैपिंग, जैसे हम अभी आईआर के बारे में पढ़ रहे थे, बायलेटरल रिलेशंस. आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, जीएस का पार्ट है ही, और पीएसआईआर में आप सारी कंट्रीज को जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस हैं उनको डिटेल में पढ़िएगा, राइट? India and the neighborhood, importance of international institutions, agencies, fora, all that, right? So, see, these are all the topics of GS that you are also going to study. They are the pillars of PSIR. So, the list may not end, right? ये देखिए, ये सब आपका क्या है? GS का पार्ट, जो आप पॉलिटिकल साइंस में डिटेल में पढ़ते हो, right? So that is there. This is I'm just showing you the length of syllabus कि कितना कुछ overlap करता है. You do all the multilateral organization, ASEAN पढ़ते हो, SAARC, BBIN, EU, West Asia, SCO, BRICS, BCIM, सब पढ़ते हो. और ये सब आप जीएस के लिए तो करते ही हो, बट पॉलिटिकल साइंस में भी रहता है. WTO, राइट? UN, UNSC, WHO, क्या नहीं है? You look at the global issues, which is again a part of current affairs, और ये सब आप PSIR में पढ़िएगा ही, राइट? सो हेलो मैम. यस मैम, जैसे कि हम आईआर के थोड़ा सा पार्ट जीएस में पढ़ते हैं मैम. जीएस में एक बुलेट में मैम लिखा है कि इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा. मैम मैम इंडियन डायस्पोरा के क्या फंक्शन है मैम? ये तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बता देंगे? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायोस्पोरा? यस मैम, क्योंकि डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो इंडिया का ओरिजिनली उनका बट पेरेंट्स सेटल्ड इन द अदर कंट्रीज, यस मैम, राइट? फॉरेन कंट्रीज. हाँ सो देखिए, जो भी पॉलिसीज इंडिया में बन रहे हैं, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, एंड द एंटायर पॉलिटिक्स, हैव यू सीन एनी अदर प्राइम मिनिस्टर एवर बिफोर talking at such or giving a speech at such a major platform that has happened in US before? वो हमने मोदी के साथ देखा है. उसके पहले हमने यूपीए के टाइम में, या उसके पहले हमने ऐसा नहीं देखा है. You have seen the merger of the largest and the oldest democracies, the kind of hype that has been created by the social media because of the things that are happening now in the global arena. तो अगर मोदी जी यूएस में जाके भाषण दे रहे हैं, और वो भाषण हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, दैट इज हाउ यू कनेक्ट विद द मासेस. आप वहां हिंदी में बोलकर किसको इंप्रेस करने गए हैं? द डायस्पोरा दैट लिव्स देयर in US, and not anybody, or he is not impressing there the masses of US. ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडियन मासेस थे, बाकी लोग भी थे, पर उनको पता है कि मुझे किससे वोट चाहिए, मैं उनको हिट करूं, उनको अपीज करूं, या उनको इम्प्रेस करूं. So this is how that the policies and politics, and we know that the funds, NRIs का कितना important role रहता है माइग्रेशन में. That is how Indian diaspora is playing a role or having an impact, or they want to contribute to what is happening in the developed and developing countries. Yes, Preeti, you can ask your doubt. Go ahead. Okay, I hope I made your point clear, whoever asked it. यस मैम. और मैम और एक बुलेट में लिखा गया है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर मैंडेट. मैम एजेंसीज और फोरा के स्ट्रक्चर क्यों चाहिए मैम? I did not get, there was some disturbance. Please repeat your question. मैम क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर मैंडेट. मैम ये एजेंसी और फोरा इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? देखिए, ये जो अभी आपने ये पढ़ा था ना, अभी I just took you to here. These are all the international agencies and institutions. Why is one second.
guys, so these are the international agencies and institutions. इनका फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अब आसियान के जो मेंबर्स हैं, आप जब उनके मेंबर्स को पढ़ोगे, उनके बर्थ के, व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्न, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो समझिएगा. तो इसलिए स्ट्रक्चर और फोरा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आप उनकी फंक्शनिंग को जान पाइएगा कि कहीं पे मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, किस मेंबर ने अटेंड किया, व्हाट आर द न्यू अग्रीमेंट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, विल दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और अ नेगेटिव इम्पैक्ट. वो इसलिए. और मैम प्रीति, आई एम अगर जस्ट टेलिंग यू नाउ, अभी बताते हैं कैसे पढ़ना है. मैम अगर क्या? जो भी डिसीजन लिया या फिर कोई भी इंडियन उससे पार्टिसिपेट किया, मतलब इंडिया अगर किसी भी तरह से अफेक्टेड है तभी तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना मैम? अगर इंडिया बिल्कुल इफेक्टेड है, इंडिया पे इफेक्ट है, फिर तो इम्पोर्टेंट है ही. लेकिन लेट अस से देयर इज सम अग्रीमेंट हैपनिंग बिटवीन द कंट्रीज विच इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ, लेकिन उनके आपस में रिलेशंस भी तो इंडिया को इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, द बेसिक एग्जांपल इज कोल्ड वॉर. इंडिया वाज नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर, लेकिन इंडिया किसको फेवर करता है, ये बात दोनों को बहुत खटक रही थी. तो वो हर, ये इक्वेशंस ही ऐसी हैं. अब देखिए, क्लास में दो लोगों का दोस्ती है आपस में, आपको उस ग्रुप में नहीं जाना है, आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं हो, लेकिन उस ग्रुप की वजह से आप पे कुछ इफेक्ट पड़े या ना पड़े, आपकी नजर में तो रहेगा ना हमेशा. इफ यू वांट टू लीड, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में लीडर बनना चाहते हो, तो इंडिया का नाम आज जिस रिस्पेक्ट से लिया जाता है, इन द काइंड ऑफ सीट that it has gained in the global politics in the last decade, it has changed from what was before. पहले से काफी बदल गया है. That is because we are actively participating in the global politics. You are now having strategic partnership with US, और हर चीज में वो इफेक्ट कर रहा है, right? Now guys, this is the thing, these are the things that I wanted to say, that how they how it overlaps, कि कितना कुछ overlap करता है, ये इस बारे में था. अब सबसे पहले, बिफोर मूविंग टू द सोर्सेज एंड टेल यू कि आपको क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले ये समझिए दैट ये जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है. ठीक, डायनामिक ड्यू टू आईआर एंड स्टैटिक ड्यू टू पेपर 1. जो पेपर 1 है, लेट मी टेक यू टू द सिलेबस, उसके बाद हम सोर्सेज की बात करते हैं. देखिए, पेपर 1 पार्ट 1 में यू विल, वॉइस क्या ना मैम? इज द वॉइस नॉट ऑडिबल? स्लो है मैडम. See, political theory, meaning and approaches. Indian political theory and Indian politics, it is paper 1. दो पेपर होते हैं. This is paper 1 part 1. अब बात समझिए, हर चीज का, for example, you will have 4 parts here, 2 parts in paper 1 and 2 parts in paper 2. जरूरी नहीं है कि हर पार्ट को इक्वल टाइम देकर पढ़ना है. देर आर सर्टेन पार्ट्स दैट नीड टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन, जहाँ पे हमें पता है क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है. ठीक है, एंड देर इज अ पार्ट दैट विल फॉर्म द बेसिक ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट, आपका बेस बनाएगा. आज की डेट में यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता कि प्लेटो कौन है, क्या उन्होंने सोचा होगा. देखिए, लुक एट द पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन लॉक, स्टुअर्ट मिल, मार्क्स, ग्राम्सी, हना आरेंट. आपको नहीं पता ये लोग कौन है, हो सकता है ना, जो साइंस बैकग्राउंड से, एंड यू मे नॉट नो व्हाट वाज देयर थिंकिंग, व्हाट वाज द थॉट. इन सबको क्या पढ़ना है. अब जब हम ये थॉट को पढ़ते हैं, इट ओवरलैप्स विद द थियरीज ऑफ स्टेट. जब आप मार्क्स को पढ़ेंगे, लुक एट टॉपिक नंबर 2, थियरीज ऑफ स्टेट. जब आप पॉलिटिकल थॉट में मार्क्स पढ़ लीजिएगा, तो आपको मार्क्सिस्ट थियरी अपने आप समझ आ जाएगी, राइट? जब आप वहां पर और थिंकर्स को पढ़ेंगे, आपको फेमिनिज्म समझ आएगा, आपको पोस्ट कोलोनियलिज्म समझ आएगा, राइट? तो टॉपिक्स बहुत इंटरलिंक्ड हैं. तो सबसे ज्यादा जो टाइम मैं लेती हूँ पढ़ाने में या लगता है, वो इसको लगता है पेपर 1 पार्ट 1 को. यू अंडरस्टैंड. सी, टॉपिक नंबर 3, जस्टिस. तो रॉल्स के बिना जस्टिस की बात हो ही नहीं सकती है. रॉल्स ने क्या कहा, क्यों कहा, उनकी थ्योरी पे अगर क्वेश्चन आता है, और आता है जनरली, यहाँ से आप स्टैटिक क्वेश्चंस ही देखते हैं,
तो उस थियोरी ऑफ रोल्स में मुझे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं कि एग्जामिनर पहले ही पकड़ ले कि हाँ इस बंदे को आंसर आता है, राइट। अब जैसे लिखा है इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक, ये हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पूरे आंसर्स और नोट्स मिलेंगे, है ना। इक्वालिटी क्या है, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज एफर्मेटिव एक्शन, राइट्स की बात करते हैं। आज के डेट में तो ह्यूमन राइट्स सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, और वो आप पीएसआईआर में अच्छे से पढ़ते हैं, यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, जीएस में भी लिख पाते हैं। यू हैव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप, बात कर रहे हैं दिन रात डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बट व्हाट एक्चुअली इज डेमोक्रेसी, कैसे इसको सस्टेन करना है, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट, कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजेमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूपीएससी का पेपर हो और पावर से क्वेश्चन ना आए। मतलब एक पैटर्न भी समझते हैं ना, हम देखते हैं फैकल्टी तो उस पैटर्न को भी समझ पाते हैं। अब देखिए जब आप टॉपिक 8 को देखेंगे, यहाँ पे फिर से मार्क्सिज्म आ गया, फिर से सोशलिज्म आ गया, लिबरलिज्म आ गया, फेमिनिज्म आ गया। और जब हम टॉपिक 10 को देखते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स को पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे ये टॉपिक्स काफी लिंक्ड हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ते हैं गांधी को, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं इंडिया के। देन एम एन रॉय, सर सैयद अहमद खान, औरबिंदो, राइट, बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर को अभी पढ़ा था ना सिलेबस में, पॉलिटिक्स पेपर 2 में, इंडियन पॉलिटिक्स में, दलित पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंटरलिंक्ड है, और ये आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है दैट वंस यू नो द सिलेबस एंड यू हैव द नोट्स, you are able to draw the connection between the different topics. Okay, then I have already discussed paper 1 part 2. Now this is paper 2 now. अब हम पेपर 2 पे आ गए हैं, पेपर 1 खत्म। पेपर 1 में आपको दिखा होगा काफी हिस्ट्री है, काफी पॉलिटी है, और काफी पॉलिटिकल साइंस है, जहाँ पे आप थिंकर्स को पढ़ते हो, राइट। नाउ दिस इज पेपर 2। पेपर 2 का नाम है कंपैरेटिव तो पॉलिटिक्स, या मैम अभी अभी जो कुछ ग्रेट मेन के आपने नाम दिखाया, जैसे मार्क्स, गांधी। अच्छा मैम अभी आप बताया ना कि हम लोगों के आंसर राइटिंग में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनका नाम मेंशन किया हो, तो मैम जीएस में भी क्या इन लोगों का नाम मेंशन नहीं, करेंगे? जीएस के आंसर्स को थोड़ा डिफरेंट रखना होता है। यू कैन नॉट जस्ट शो ऑफ योर नॉलेज देयर एंड टेल देम, उनको पहले ही बता दो कि हम पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं। जीएस इज जनरल साइंस, सो योर आंसर हैज टू बी जनरल। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड नो दी फैक्ट्स टू आंसर इट, एंड यू कैन नॉट कोट अ थिंकर और अ स्कॉलर एवरी नाउ एंड देन व्हाइल यू आर राइटिंग अ जीएस आंसर। वो जीएस में नहीं दिखना चाहिए, वैसा नहीं होता है। व्हेन यू विल डू पीएसआईआर तो आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी, कैसे आंसर्स को लिखना है। इट डजंट कम ओवरनाइट, ठीक है। आंसर जो, और मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि ऐसा भी नहीं है कि डे 1 से क्लासेस स्टार्ट हुई और आप रोज 10-10 आंसर लिख रहे हो, 5-5 आंसर लिख रहे हो। नो, दैट इज नॉट नीडेड, दिस स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। इससे काम नहीं चलता है। आंसर राइटिंग, आंसर को लिखने के लिए पहले एक सफिशिएंट नॉलेज तो हो आपके पास, वो नॉलेज तो पहले गेन करो, सब्जेक्ट को जानो तो पहले पहले प्लेटो को जानो, तो उसके बाद लिखना शुरू करो, ठीक है। ये नहीं है बस कि बस मैम ने पढ़ाया और लिखना शुरू कर दिया। ओके, मैम फर्स्ट स्लाइड में आप दिखा रहे थे कि एथिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस आईआर के क्या रिलेशनशिप है ऑप्शनल के। अच्छा मैम वहाँ पे आपने कुछ दिखा रहे थे सोक्रेटिस, प्लेटो। अच्छा मैम एथिक्स में जो पढ़नी है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, क्या ये सेम ही है? मतलब क्या क्या हमको सेम पढ़ना है? सेम नहीं है, सेम नहीं बोल सकते। एथिक्स और पीएसआईआर डिफरेंट है, बट आई एम सेइंग वहां पर भी आप प्लेटोनिक थॉट पढ़ते हो और यहाँ पर भी पढ़ते हो। आई एम सेइंग दैट यू विल फाइंड एन ओवरलैप। Now let me complete this paper 2 discussion first, then I will take up the further doubts. Now Okay, ma'am. guys, this is paper 2. The name of this paper is Comparative Politics and International Relations. तो देखोगे आप अक्सर कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लोगों को काफी टफ लगता है, रीजन बीइंग कि इसके बहुत ज्यादा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और लोग क्या करते हैं, यूपीएससी का जो सिलेबस है ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो कहीं भी किसी एक बुक में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज नॉट रिटन कि ये एक बुक पढ़ लीजिए और आपका कंपैरेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि कंपैरेटिव के जो भी आपको क्लास नोट्स मिल रहे हैं, आपको बस वो पढ़ना है। इसके लिए और कोई भी बुक नहीं पढ़नी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके,
सो ये थोड़े साइंटिफिक टॉपिक्स हैं। साइंटिफिक का मतलब है सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपको पीएसआईआर में सीखने मिलेगा। पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट आर द लिमिटेशंस, स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कितनी तरह की स्टेट्स होती हैं, हार्ड स्टेट, सॉफ्ट स्टेट, फेल्ड स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, ये सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, देन जो ये शुरू के 4 टॉपिक्स है ना, ओनली दीज 4 टॉपिक्स आर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। टॉपिक नंबर 5 से आपका आईआर स्टार्ट हो जाता है। सो थर्ड इज पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड फोर्थ इज ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज सच अ कॉमन एंड एज वेल एज इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इट इज ऑल्सो देयर इन जीएस। वो दोनों ही जगह है, तो आप इसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ते हो। और ग्लोबलाइजेशन अभी आप इसमें भी देखोगे, पेपर 2 के ही सेकेंड पार्ट में भी, राइट? तो बहुत इंटीग्रेट करना है, अच्छे से पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन जीएस में भी पढ़ते हो। सो टिल टॉपिक नंबर 4 इट इंक्लूड्स योर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और टॉपिक नंबर 5 से स्टार्ट हो जाता है आपका आईआर। टॉपिक नंबर 5 से एक क्वेश्चन आना ही आना है, रियलिज्म पे या आइडियलिज्म पे। डायग्राम के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करो, अपने आंसर्स को जितना बना सकते हो अंडरस्टैंडेबल, कि एक पैराग्राफ में लिख रहे हो या एक फ्लो चार्ट में लिख रहे हो, जल्दी से आपने एग्जामिनर को समझा दिया कि आइडियलिज्म ये होता है, रियलिज्म ये होता है, तो वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स। ओके, तो टॉपिक नंबर 5 से यस अजीत, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये स्टैटिक कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है ना, एक तो दिख रहा है वर्ड में कंपेयर, तो हम क्या कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम्स, द पॉलिटिकल सेटअप्स, वो पढ़ते हैं हम, कि इंडिया और चाइना का पॉलिटिकल सेटअप को कंपेयर करोगे, या यूएस के, और मतलब यू नो डिफरेंट। अब हम हर कंट्री का तो नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हमने उनको डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिया है? इन दी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैसे उनके बीच में कंपैरिजन है। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द डेवलपिंग सोसाइटीज, जो डेवलप कर चुके हैं या जो अभी डेवलप करना चाह रहे हैं, जो डेवलपिंग स्टेज में है, तो ये आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हो। Yeah, so this is what you study in comparative politics. You make a comparison between different types of economies, right? So before you draw a comparison, you need to understand the basic knowledge, the science and the facts, the logics that are associated with it, what different scholars have said about it. So that is there. Okay, then topic number 6 is key concepts in IR: national interest, security, power. I already told you power is so important. So you will do power in paper 1 as well as in paper 2. Then topic number 7, read the second part, B part for topic number 7, that says non-aligned movement, aims and achievements, collapse of Soviet Union. फिर से आ गया, right? We also do it in paper 1, and you do it in GS also, right? How Soviet Union disintegrated, unipolarity, American hegemony, very important topic. Then again, relevance of NAM in the contemporary world, right? Then UN, EU, ASEAN, APEC, SARC, NAFTA, SAFTA. So you all the important organizations you do here. Then if you look at topic number 11, that takes you to democracy, human rights. Is it not repetition again? Environment, gender justice, terrorism, nuclear proliferation, right? Now, this is India and the World, paper 2, part 2. It starts with part 2. So here you have Indian foreign policy making, right? How do we actually approach to making a foreign policy? What shall be the determinants? What are the institutions? Again, you see NAM here. What has been India's contribution to NAM? Right? Look East policy, Act East policy, right? That is all there. River disputes. Then you do the India and the global south, then India and the global centers, India and UN, India and nuclear question. Abhi, you already have seen a topic, nuclear proliferation. And last topic for this that completes your syllabus is position on the recent crisis in Afghanistan, Iraq, and West Asia. Very important. But not just this, but we do the entire IR of all the nations, right? So that is the syllabus. I hope I have made you travel through the syllabus. We have had an overview of how this subject look like, what all are the important topics that we will be doing here, what all we will study here.
which you must have by now known that it is definitely going to help you in your GS, definitely. But one more point is that, guys, the revision is the only key to prepare your optional or to prepare yourself for UPSC. In the first reading, when you will attend my lectures, or for that matter, if you are doing any teacher's class, or you are reading any book, when you read it for the first time, you merely become familiar with what is it. When we will do a class on Plato, you will only understand, okay, there was a man Plato and he talked about this and that. But the challenge is to retain all those logics and concepts 1 year down the line. And how have you still, 1 year down the line, are you still able to relate and interlink all the logics? Can you make a comparison and difference between Plato and Machiavelli? How Plato's philosopher king is different from Machiavelli's prince? Machiavelli's prince and philosopher king, do they have some similarities or not? So this is that all can be done and drawn by you only and only when you are revising things. There is no shortcut to revision. Rather, revision is the only key that will fetch you marks and will help you sail through this exam. Okay. Now, if I go for the type of question that are asked in the UPSC, you can also have a look at the question paper. I have it with me too. So there are different types of questions. There are some static question as well as there are dynamic questions. So देर आर स्टैटिक क्वेश्चन एज वेल एज डायनामिक क्वेश्चन. सो जो स्टैटिक पार्ट है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे. डायनामिक के लिए व्हाट इज नीडेड इज दैट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर. देयर इज यू नो there is no shortcut to newspaper. Please make a habit. There are two. You can either go for Hindu or Indian Express, any one of which you are comfortable. But when you know the syllabus and you understand it, then you know, okay, when I'm reading this news, this may also relate to particular topic in my optional. That is how your mind will be more active, guys. UPSC is not looking for somebody who can work hard day and night. Hard work is इनहेरे हार्ड वर्क इज देयर, मतलब उसके बिना काम चल ही नहीं सकता है. बट यू ऑल्सो नीड टू डू स्मार्ट वर्क, राइट? डू नॉट बिकम स्मार्ट बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स, बट बिकम स्मार्ट बाय आंसरिंग immediately when you hear the question by reading your notes 100 times. So I personally believe that when you write something with your hands, so notes you will all get from IAS Edge. I will give you all the notes for both static as well as the dynamic. But please do one make habit, do that. Once we are done with Plato, make a flow chart, write all the important points, and we will do it in our class also. I'll teach you how to do a flow chart. I'll write it, so that makes you very confident about the subject. Now there is a list of books that you can see here. Introduction to Political Theory, OP Gaba. Political Ideologies, Andrew Haywood. Western Political Thought. Again, you can also read Goba, and you can also go for Subrata Mukherjee. Indian Political Thought, VR Mehta. So there are different books. Paper 1, Part 2, Lakshmikant is there, DD Basu is there, Bipin Chandra. These are some common books. But let me tell you guys, you really need not read everything. ये सारी books आपको नहीं पढ़नी है. If you are attending our class, if you are reading, doing my notes sincerely, if you are attending the class regularly, I will also ask you to make some assignments which have a purpose. So if you are doing religiously, then you can very well understand this subject. Now people are asking, ma'am, how much time is required? 4 to 5 months are sufficient. 5 months, I would rather say that in 5 months we can very comfortably complete this syllabus. We can do that. 5 months shall be sufficient time and right time to begin your preparation, because you cannot do your optional in a hurry. It shall be handled with all patience, and you should know a very in-depth knowledge of it. You guys, you can please ask your questions now. You can please ask your questions now. Okay. So this exam, the syllabus is not just extensive, but it is very intensive also.
in-depth knowledge. We will do radical humanism. Why is it needed? Every year you can expect a question on radical humanism by M.N. Roy. Plato's theory of knowledge, Socrates' theory of knowledge. वो क्या है? What has been explained in that knowledge? Why Socrates? What made him think so? Why has he given this theory? What are the logics behind it? And do we still see the relevance of his theory in today's era? Right? This is how you have to understand. Right? This is how you have to um, interrelate things and then write things. Right? So I would say please do not waste your time on collecting notes आपको यहाँ से मिलेंगे. Rather invest your time on reading about contemporary issues. Invest that time on understanding the global issues. Spend that time reading newspaper. Ankit, social movements are any movement that is happening either in India, जैसे Me Too movement अभी आपने off lately देखा था. You can expect a question about that too. Yes, guys, who are raising your hands, you can please ask. Okay, ma'am. This is Nayandeep. Are you hearing, ma'am? Yeah, I can hear you. Okay, ma'am. First question is, ma'am, related to current affairs. That, ma'am, Yeah. is it in the paper 6 and the 7s? We have the current affair parts or not? Under paper? 6 and Repeat. 7 means our optional paper. Optional paper, topic number 6 and 7. No, ma'am. I am talking about, ma'am, in the optional papers. Do we have current affairs also? Yes. PSIR, second part IR. It will also include current affairs. Your current affairs has a major chunk. आप daily newspaper में क्या पढ़ते हो? What is happening between India China? How China is affecting the global question? What US has to say? Trump's policy, how they are affecting the visas? What about migration and immigration? What all these are having an impact on the domestic politics? So that is there. We definitely do it. It is a part of the dynamic part of this paper. Ma'am, as I am 19 years old, so Yeah. in 2022 I will give this examinations. So, Okay. ma'am, can you tell me that how much current affairs means, from how much time I have to cover the current affairs part? See, in your case, first of all, you shall start reading newspaper from day one itself when you are thinking to prepare it. So newspaper reading is should be a habit. For example, like you eat food and you cannot live without eating it, that shall newspaper reading shall become that important part of your personality and your daily routine. So you can start it right away. But if I talk from the perspective of UPSC, if you are you know it at this stage that yes, I'll be writing for after 3 years down the line, then you can prepare for 2 years current affairs. 1.5 तो every aspirant is doing. Question आते ही हैं from the past 1.5 year. So you can target it at 2 years. Start making notes then. From right now, you shall read newspaper and try to understand what is happening. What does editors have to say? So it takes time to develop a habit. It doesn't come overnight. Next. Okay, ma'am. Do we have PDF lecture of PDF of this lecture? Of this particular orientation that I'm taking right now? Yes, ma'am. Oh, you can get it. That's not a problem. You can get it tomorrow from the counselor or from Arun sir maybe. Okay, ma'am. And ma'am, if in future, suppose that, ma'am, I am not going to take the tuition right now, and Yeah, because yeah. I want to first, because I am from, my past background is from PCM. Okay. So my past is not that much good in this side, means in humanity side. So I want See, first. when I teach, when you will take your PSIR classes, I will teach from zero. I will not expect that my students are from political science and they already know something about democracy. I will tell you democracy from zero and I will take you to 100. That is how I teach in my classes. Okay, ma'am. So, ma'am, do I start from first self study or directly take the tuition? You can only for your side first read newspapers. Secondly, you can start reading NCRTs. Ma'am, last one. Ma'am, as Yeah. you suggested two things, like first one is the BL Fadia book and the second one is M. Lakshmikant. Means, but the both books contains the same syllabus. Then how can we decide that which part we Either have to study from?
See, when you are targeting optional, if you talk about political science and international relations, I will tell you which page, which topic to read from which book. And in my class, you will note that I really do not give you references much from the books. I have compiled notes for every topic of UPSC. तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको हर टॉपिक के लिए बोल रही हूँ आप उसको उस बुक से पढ़िए या उस बुक से पढ़िए। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं यू रियली नीड नॉट एनी अदर बुक, आपको बस क्लास नोट्स पढ़ने हैं और आंसर लिखने हैं। ओके मैम। एंड मैम अगर मैम जैसे कि ट्यूशन ले रहे हैं आपके यहाँ से पॉलिटिकल साइंस का और इसका आईआर का, तो मैम उसके बाद हम लोग का जो ये पेपर 2 है ना पॉलिटिकल साइंस, या तो मैम ये पेपर 2 के लिए हम लोग को तैयारी करना होगा ये पेपर 2 अलग से? पेपर 3 ना मैम? GS2 you are saying, for GS you are saying? यस मैम, जीएस पेपर 2 ये 3। GS में GS पेपर 2 के लिए ओवरलैपिंग है। what you do in PSIR will help you here, but of course there are many other topics also na that are there in GS paper 2. it will give you an edge while writing answers, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यस मैम। Yeah. So someone's asking, Ankit is asking, source for IGP topic 1. Here, Indian nationalism, Ankit. For this, Ankit, first of all, class notes. I have notes for everything. Constitutionalism to mass satyagraha, non-cooperation, civil disobedience, everything. Otherwise, if you want to refer, you can read Bipin Chandra for this. If you want to. Otherwise, class में notes जो मिलेंगे उसमें सब होगा. But this is covered in Bipin Chandra. Topic number 11. Social movements. This is a dynamic topic. You cannot read it from any book. There are notes to it and then there are newspaper. Preeti, we will start our optional classes. You can get that particular date or when we will start it from Pramod sir. So institute will intimate you. We have not finalized on it, but yes, we aim to start it soon so that in the next 5 months you can talk to Pramod sir about it, Preeti. I really do not know when are we deciding to fix it on. Okay, guys, are there any other doubts? Anybody? If you still have few doubts and you want to talk about PSIR, if you think it has been left, you can ask your doubts. You can mail it to me. And this was all that I wanted to tell you regarding the subject, how PSIR is. While concluding the lecture, I would like to say this is not for a marketing or publicity of PSIR, but I would like to say that while you are choosing any optional, please have a look at the syllabus, please look at the previous year questions and see how interesting the topics are, and then decide for yourself that what optional I should go for. Okay, I am giving you my email ID as well. If you have anything related to PSIR, you can ask me. It is gargkomal267 at the rate gmail.com. You can ask it. Okay, guys, thank you so much for the cooperation throughout the lecture. Thank you.